Okay, good afternoon, everybody. As previously discussed, we want to start the sports nutrition class, the leftover topics. So today we'll be taking a very important uh, topic on calorie counting, calorie deficit, calorie surplus, glycogen Ten, booking, 10, yes, nitrogen unloading, pre and intra 10 double, workout, supplementation, and 10 maintenance double. meals. I'll request everybody, please keep your microphone in mute. Please keep your microphone in mute. And also requesting, please switch on your cameras. I cannot see you people attending this class. Okay, great. So only Ridhendra Narayan and one, two more people. Everybody, please switch on your camera. Yeah, over it. Forget iPhone. Okay, Shubhankar. यार আমি রাতটা আছি কয়েক Okay. Thank you very much. So today's important class. Okay. So foundation for any athletic performance to support energy, muscle recovery, and endurance. That is, everybody we know that a sports person needs energy, proper muscle recovery, and endurance and enhanced performance. And for that, we need to know the sports supplementation. So balance intake of macronutrients and micronutrients. So the key element of all this is calories, time, and supplementing. Okay. I hope that everybody knows BMR, basal metabolic rate. This is the energy what we utilize during our complete rest period. Means complete body rest and psychological and physical rest. When you are in deep sleep, the per square centimeter of your skin emits some energy. That particular area and emitting of the energy, it is your basal metabolic rate, BMR. So the minimal amount of energy you need during your sleep, deep sleep, is your BMR, basal metabolic rate. If you are not understanding the BMR, you can raise question. I will answer. BMR समझ में आया? जब आप कंप्लीट रेस्ट में हो, सो रहे हो, आपके साइकोलॉजिकल फिजिकल पूरा रेस्ट है, कंप्लीट सो रहे हो एकदम, उस टाइम पे आपके इंटरनल बॉडी फंक्शंस को या मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए जितना मिनिमल कैलोरी चाहिए होता है या एनर्जी चाहिए होता है, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है. ओके. सो कैलोरी burned at complete rest is your BMR. And there is a term called TDEE, that is total daily energy expenditure. आप दिन में कितना कैलोरी एक्सपेंडिचर खर्चा करते हो कोई भी काम करते वक्त. सो TDE का एक फॉर्मूला है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का. वी हैव वन फॉर्मूला, दैट इज योर BMR इनटू एक्टिविटी फैक्टर. आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इनटू एक्टिविटी फैक्टर इज इक्वल टू योर TDEE. अभी एक्टिविटी फैक्टर क्या है मैं बताऊंगा. पहले BMR कैलकुलेशंस जो है वो आप जान लो. तो BMR क्या था कि आप कंप्लीट रेस्ट में हो, उस टाइम पे आपके जो मिनिमल कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो BMR है. सो मेन एंड वुमेन के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला है जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट में. 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज प्लस 5. जो ब्रैकेट वाला काम है वो पहले खत्म कर लेना है, इससे आपका BMR निकलेगा. और फीमेल के लिए
लास्ट में 5 into age -161 है। ये प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है, सेंट ज्योर इक्वेशन बोलते हैं। हेरिस बेनेडिक्ट मेथड भी है इसमें। तो ये अलग अलग मेथड से टू कैलकुलेट योर बीएमआर। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एज, सेक्स, वेट, हाइट, ये सारे पैरामीटर्स आपको चाहिए टू कैलकुलेट योर बीएमआर। अगर आपको इजी उपाय चाहिए सो यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन सर्च फॉर बीएमआर कैलकुलेटर। बीएमआर कैलकुलेटर राइट नाउ यू डू, अभी कीजिए आप। and tell me your BMR. Each and everyone, please write down your BMR in the chat box. First, open Google and open BMR calculator. Then put your sex, height, age, weight, those parameters, and then press calculate. And let me know the result in the chat box. Okay, Sheikh Saifuddin, it is 1600 kilocalories. Shayon, it is 1829 kilocalories. Aniruddha is 1694 kilocalories. Rest of people, बाकी लोग का, शुभंकर दे it is 1745 kilocalories. Okay, so we are using shortcut method and technology right now. So directly we are using BMR calculator in Google. But the theoretical part is, if suppose you need to be theoretically calculate BMR, you have to use this formula. So you can try afterwards. You when I'll give you this PPT presentation, you can theoretically try to calculate your BMR. This is the theoretical formula of calculating BMR. सो ये जो बीएमआर आपका निकला, दैट इज लाइक इन कंप्लीट रेस्ट। आप अगर 100% रेस्ट में हो, सो रहे हो, उस टाइम में जो बॉडीली फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स चल रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका लिवर, आपके किडनीज, सारे विसेरास, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपके मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, ये सारे चीज को चलाने के लिए जो मिनिमल आपको कैलोरीज चाहिए वो आपने निकाला है अभी, एंड दैट इज योर बीएमआर। ओके, नाउ हम लोग TDEE निकालेंगे, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो इसमें आपको एक इंस्टेंट TDE चार्ट मिलता है, जिस TDE चार्ट से आप डायरेक्टली उसका डेली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके उसका बीएम पक्का जो है TDE निकाल सकते हैं। सो TDE के चार्ट ऐसा बोलता है कि अगर आप सेडेंटरी हो, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट डूइंग नथिंग, जीरो एक्टिविटी, देन योर BMR इंटू 1.2 इज योर TDEE। अगर आप लाइट एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब घर का काम करते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस से वापस आते हो, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हो, नॉर्मल है, सो दैट इज लाइट एक्टिविटी लेवल, दैट इज BMR इंटू 1.735, वो आपका TDE है। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हो, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करते हो, हफ्ते में आप 3 बार जिम जाते हो, कोई स्पोर्ट्स के साथ आप एक्टिविटी करते हो, हफ्ते में 3 दिन करते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, 1 से 2 घंटा आप इन्वॉल्व रहते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, देन इट इज कॉल्ड मॉडरेटली एक्टिव लाइफ। मॉडरेटली एक्टिव लाइफ में आप BMR इंटू 1.55 करोगे, जो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकलेगा। अगर आप वेरी एक्टिव हो, हफ्ते में आप 5 दिन जो है एक्सरसाइज करते हो, 5 दिन आप हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स से जुड़े हो, देन इट इज वेरी एक्टिव, then your total daily energy expenditure will be BMR into 1.725. Now, if you are an extra active person, like you are like doing like anything, सुबह से शाम तक आप प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, यू आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स,
क्रिकेट में, फुटबॉल में, एनीथिंग, इवन बॉडी बिल्डिंग में, then you are like extra active person. So extra active person is BMR into 1.9. Now please write down in the chat box after calculating your TDE depending upon your daily activity level. आपके जैसे खुद का एक्टिविटी लेवल है उसको बीएमआर से इंटू करो। अगर आप सेडेंटरी हो तो 1.2 से, अगर आप लाइट एक्टिविटी में हो तो 1.375 से, अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हो तो 1.55 से, हाईली एक्टिव हो तो 1.725 से, अगर हाईली हाईली एक्स्ट्रा एक्टिव हो तो बीएमआर इंटू 1.9, जो यहाँ पे कोई नहीं है अभी। सो नोबडी इज बीएमआर इंटू 1.9। आई नो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 1.375 to 1.725 max. So please calculate and let me know. Write it down your total daily expenditure, energy expenditure in the chat box. ये आईफोन का कम किसे हो गया? बीएमआर इंटू आपको कैलकुलेट करना है। एक बार आपका बीएमआर बताओ, अनम्यूट करके बीएमआर बताओ। आईफोन হ্যাঁ স্যার। बीएमआर কত তোমার? স্যার আমি যে ওইখানে মানে যেটা করেছি চ্যাটে যেটা বলেছেন আপনি 914 বেরিয়েছে। না না, it is impossible. The World Health Organization, WHO, has given one standard. Upon that standard, if you open any packet of food or any, supplements, there is always a standard total daily expenditure written over there. That is called your uh, daily needs. Daily जो calorie needs है, that is 2000 standard for male and 1800 standard for female. It cannot be 914. If it is 914, you are dead. স্যার এখানে এজ হাইট আর ওয়েটে আমি দিয়ে তো ক্যালকুলেট করেছি, ওখানেই তো সেম রেজাল্ট আমাকে এটাই দেখাচ্ছে। Something wrong. কিছু problem আছে. Something is wrong. It will be more than 12 and minimum 1400. কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার, করছি। আমি ক্যালকুলেট করছি, 1 মিনিট হোল্ড করো তোমারটা। এজ কত? 30। হাইট কত? 5 ফিট স্যার। ওয়েট কত? 60। 60 কেজি মানে কত পাউন্ড হবে? 1 হুম 60 ইন্টু 4.2, 252। 1775 আসছে। 132 হুম আর কোন গ্রুপে আছো তুমি? সে মানে এক্সারসাইজ? স্যার ওই 1.375 লাইট অ্যাক্টিভিটি। লাইট অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ। তাহলে 1700 ক্যালোরি ইন্টু 1.375 ইন্টু 0.375, 2300 সামথিং আসছে। 2337 কিলো ক্যালোরি, 2337 কিলো ক্যালোরিজ হুম। তোমার লাইট অ্যাক্টিভিটিস যদি থাকে। সো
Aniruddha is 2900 TDE, Shayan 3115 TDE, ওকে। শুভদীপ এত 2758, হৃদেন্দ্র নায় 2828, শুভঙ্কর দে 3010, সৌমিক 2345 কিলো ক্যালোরি। নাও টিডি চার্ট তোমরা বার করলে, বাট ওয়াই ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট নাও, think about a sportsman. Okay, now I'm not only talking about general people, I'm talking about sports person. If the sports person is overweight or underweight, ये कैसे आप लोग को समझ में आएगा? Where BMI फॉर्मूला जो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स करते हैं, that fails in sports person. We don't use BMI for sports person. BMI जो है वो हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन में यूज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज BMI में सिर्फ हाइट एंड वेट इंडिकेटिंग है। हाइट और वेट इंडिकेट करता है कि आप ओवरवेट हो, अंडरवेट। एथलेटिक पर्सन में क्या होता है कि मसल मास ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होता है। तो उसके लिए एक्यूरेटली अगर आपको जज करना है कि वो ओवरवेट है क्या है, तो उसके लिए आपको बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करना पड़ेगा, BCA। आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू डू BCA। सबको पता है BCA, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर? यस और नो? ইয়েস अनम्यूट। স্যার, ও মেশিনে চেক করতে হয় তো স্যার। मशीन है। হুম, জানি স্যার। ओके, थैंक गॉड। So you people know how to do body composition analysis. So if you have the report of body composition analysis, you'll be able to see कि उस एथलीट में मसल मास कितना है, फैट मास कितना है, वाटर परसेंटेज बॉडी में कितना है, बोन डेंसिटी उसका कितना है, उसका बायोलॉजिकल एज कितना है। जो आप अभी नॉर्मल एजेड हो ना, अगर लो किसी का एज 30 है, अगर उसका मसल मास ज्यादा है, बोन मास ज्यादा है, तो उसका बायोलॉजिकल एज जो है वो हमेशा कम आएगा, अराउंड 20 आएगा। दैट मीन्स ही इज अंदर से यंग। अगर किसी का एज 30 है और उसका बायोलॉजिकल एज 50 आ गया, दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, दैट इज वेरी स्लो। एंड वो बिफोर एज के पहले ही उसका बॉडी के अंदर का एजिंग हो गया है। सो दिस थिंग कैन बी चेक्ड विद अ बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर मशीन। आप लोग अगर शुरू करना चाहते हो तो बेसिक आप कराडा स्कैन मशीन से शुरू करते हो। कराडा स्कैन मशीन, इट विल कम अराउंड आई थिंक 8 to 9,000 रुपीज, आई डोंट नो, बढ़ भी गया हो सकता है। सो कराडा स्कैन मशीन यू टेक फ्रॉम Amazon। यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग एथलीट और नॉन एथलीट पर्सन। आपको वहां पे फैट परसेंटेज, बॉडी मास इंडेक्स, सब कुछ आ जाएगा उसमें, एवरीथिंग। ओके, सो TD चार्ट समझ में आया? नाउ सेकेंड थिंग इज कैलोरी डिफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस। तो कब करना है कैलोरी डिफिसिट एंड कब करना है कैलोरी सरप्लस, और कैसे हम लोग कैलोरी को काउंट करते हैं कि भाई तेरा कंजम्पशन कितना है और तुझे डेफिसिट करना है या सरप्लस करना है। आप लोग को पता है, whenever you want weight loss, you have to do calorie deficit diet. Means whatever TDEs you're having right now, if you minus the calories from your TDEs, you will be losing weight. But that will not guarantee कि you will lose your muscle mass or you will lose your fat mass. Calorie deficit doesn't guarantees your हेल्दी वेट लॉस। आपका मसल लॉस हुआ है या फैट लॉस हुआ है, ये कभी कैलोरी डेफिसिट डिफाइन नहीं करता है। नाउ अगर आप हर दिन जो भी आपका TD है उससे 250 से 500 किलो कैलोरी कम करते हो, तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। अभी दो तरीके से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। नंबर वन, थ्रू एक्सरसाइज और इंक्रीज एक्टिविटी लेवल। आप अगर एक्टिविटी लेवल आपका बढ़ाते हो, देन आपका कैलोरी बर्न ज्यादा होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट होगा। सेकेंड उपाय है कि आप आपका खाने का पोर्शन जो है उसको कम कर दो।
उसमें भी कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। तो दो चीज ध्यान रखो, मैंने ये नहीं बोला है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। मैंने बोला है अपना खाने का पोर्शन कम करना है। जितना आप नॉर्मली खाते हो हर दिन, उससे थोड़ा थोड़ा करके कम खाना है। और जितना एक्टिविटी आप डेली करते हो, उससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा करना है। सो एवरी डे यू विल लूज 250 to 500 किलो कैलोरीज नेचुरली, विदाउट एनी मच रेस्ट्रिक्शन। दिस इज द नॉर्मल वेट लॉस प्रोसेस। ये एक नॉर्मल वेट लॉस प्रोसेस है। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट कि एक बंदा या बंदी डेली कितना कैलोरी कंज्यूम करता है। एक तो आपको समझ में आ गया कि टीडीई से समझ में आता है স্যার कि बंदा আরেকবার अगर। একটু বলবেন ওটা ব্যাপারটা? कौनटा बाबू? এই একটু আগে যে বলছিলেন যে কিভাবে মানে কমাবো না। दो ही तरीका है पूरे वर्ल्ड में आपका कैलोरी डेफिसिट करने का। एक है एक्सरसाइज का एक्टिविटी बढ़ाना, दूसरा है आपके खाने का पोर्शन को कम करना। और वर्ल्ड में और कोई थर्ड टाइप का सिस्टम नहीं है। ক্যালোরি কম করার মাত্র দুটোই উপায়। একটা হলো যে খাবারগুলো আমরা খাচ্ছি তার সাইজ কমিয়ে দেওয়া, পোর্শন কমিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়, এক্সারসাইজের লেভেল বাড়ানো। আর কোনো উপায় নেই। ओके, डन। एनी डाउट? इस दो प्रोसेस में कोई डाउट है না आपको স্যার, कैलोरी डेफिसिट में? না না, ঠিক আছে। वेरी गुड। नाउ फॉर द एथलीट पर्सन, जो एथलीट है, हम लोग उसका सडनली कभी भी कैलोरी डेफिसिट नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग का टीडीई ऑलरेडी जो है हाई है। अभी सडनली अगर हम लोग कैलोरी डेफिसिट करेंगे उसका, तो उसका क्या होगा ना, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन होगा मसल में, तो मसल लॉस शुरू हो जाएगा। तो हम लोग एथलेट्स में क्या करते हैं, कैलोरी सरप्लस के साथ साथ एक्टिविटी एंड ट्रेनिंग टाइमिंग बढ़ाते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पकड़ लो, हायर एक्टिविटी में है, उसको मैं एक्सट्रीम एक्टिविटी में ले जाता हूं, तो उसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उसको मीट करने के लिए जो भी वो खाना खा रहा है उसके साथ हम लोग एड ऑन करते हैं, प्लस होगा उसमें, सरप्लस जाएगा, तो उसका मेंटेन होगा। अगर उसमें डेफिसिट हो गया कि एक्टिविटी बढ़ गया लेकिन खाना डेफिसिट हो गया, तो उसका लॉस होने लगेगा, ग्लाइकोजन लॉस हो जाएगा, प्रोटीन लॉस हो जाएगा। तो वो खतरनाक है, वो नहीं करना है। एक्टिविटी बढ़ाओ, ट्रेनिंग बढ़ाओ, खाना भी बढ़ाओ, ट्रेनिंग बढ़ाओ, खाना बढ़ाओ। नाउ क्योंकि मैं एथलीट्स का बात कर रहा हूं, तो एथलीट्स ऑलरेडी ओवरवेट्स नहीं है, तो यहाँ पे ओवरवेट नहीं होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे कम करने का, डेफिसिट करने का चांस नहीं है। यहाँ पे हमेशा सरप्लस होगा, एक्टिविटी के साथ साथ वो एकदम बैलेंस करके बढ़ेगा। ये समझ में आया? अगर एक्टिविटी बढ़ गया एथलीट का और खाने में डेफिसिट तुम कर देते हो कैलोरी, तो क्या क्या हो सकता है? एनी आइडिया? उसका सब इंजुरी, मसल लॉस, मसल लॉस हो जाए, इंजुरी का चांसेस बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस खराब हो बॉडी जाएगा, वीक हो जाएगा। बॉडी वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने से इन्फेक्शन हो जाएगा, जॉइंट्स, टेंडन वीक हो जाएगा। टेंडन वीक हो जाएगा जब, लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल भी वीक होगा, उसकी वजह से इंजुरी हो जाएगा। तो कभी भी आप एथलीट को जब भी एक्टिविटी आप बढ़ाते हो, कभी भी कैलोरी डेफिसिट डाइट में मत डालना, until and unless the athlete who wants to lose weight फॉर द सेक ऑफ पैरामीटर्स। अभी इसका बारे में भी तुमको बताता हूँ। कोई कोई पैरामीटर्स होता है, जैसे आपको पता है कि बॉक्सिंग, उसमें वेट लिया जाता है पहले एथलीट का, और उसके कैटेगरी में डाला जाता है, हेवी वेट, लाइट वेट, फेदर वेट, उसके कैटेगरी के हिसाब से डाला जाता है। देन आपके जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग एक्टिविटी है, इसमें भी बहुत सारे गेम्स में कैटेगराइज्ड है जिसमें वेट्स लिया जाता है। आपका जो पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, ये सब में भी
कैटेगराइज्ड है जहां पे वेट लिया जाता है बिफोर गेम, क्योंकि 90 केजी वाले 90 केजी में खेलेंगे, 60 केजी वाले 60 केजी में खेलेंगे। तो बाय चांस एक बंदा जिसका वेट है 68 केजी, पर वो खेलना चाहता है 80 केजी में, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सरप्लस करेंगे या डेफिसिट करेंगे? डेफिसिट। सरप्लस। सरप्लस करेंगे, यस। স্যার স্যার আরেকবার একটু বলুন না, আমি কল बंदा আসছে। 78 केजी का है, खेलना चाहता है 80 केजी कैटेगरी में, क्या करना है? সারপ্লাস सरप्लस করবে। करना। उसका एक्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन आपको सरप्लस करना है, एक्टिविटी नहीं बढ़ाना है। एक्टिविटी सेम रहेगा, कैलोरी सरप्लस करना है। एक बंदा 63 केजी वेट है, 60 केजी में खेलना चाहता है, उसको क्या करना है? ক্যালোরি ডেফিসিট করতে হবে। वेरी गुड, कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। बट ये सारे चीज जो है ना, गेम में पूरा साइकिल में पहले से डिसाइड होता है। एक एथलीट का 3 फेज होता है, एक जो है वो मेंटेनेंस फेज है, एक प्री एथलेटिक एक्टिविटी फेज है, और एक एथलेटिक मतलब जो खेल लिया उसके बाद पोस्ट एथलेटिक एक्टिविटी है। प्री एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी, पोस्ट एक्टिविटी, ये 3 फेज मेन है। और एक जो है उसको हम ऑफ सीजन बोलते हैं, जो मेंटेनेंस फेज है, ऑफ सीजन। इसमें पूरा डिसीजन हम लोग का हो जाता है कि अगर इसको इस महीना खेलना है तो उसका इस वेट में वो खेलेगा, तो उसका खाने का साइकिल ये सारे चीज पहले हो जाता है। और इमीडिएट वेट लॉस अगर करना है किसी को तो वो होता नहीं है, आपको पता है। इमीडिएट वेट लॉस ओनली कैन बी डन बाय डिहाइड्रेशन, जो खतरनाक है एथलीट के लिए। अच्छा नहीं, बहुत एथलीट मर जाते हैं इससे, और बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें क्या करवाते हैं, इसमें आप एथलीट को डायूरेटिक देते हैं, और फिर एथलीट को बहुत लंबा दौड़ाते हैं या लंबा एंड्योरेंस एक्टिविटी कराते हैं जिससे पसीना निकलता है, और उसके वजह से उसका 1-2 केजी वेट लॉस हो जाता है। पर ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। तो जो प्रॉपर कोच है वो पूरा टाइमिंग के हिसाब से उसका खाने को डिजाइन करता है, साइकिल को, कि उसको कब ज्यादा खाना देना है, कब उसका एक्टिविटी बढ़ाना है, कब इसका एक्टिविटी कम करना है। तो जब वो गेम में जाएगा, उसका अभी का वेट 65 है, जो गेम में जाएगा तब उसको 60 केजी में उतारना है। तो उस हिसाब से उसका खाने का एडजस्टमेंट होता है। मैं आऊंगा कैसे करते हैं उसको बोल। So always use calorie surplus if you want muscle gain. Also you have to use calorie surplus, but you have to increase your activity as well. अगर आपका एक्टिविटी कम रहा और आपने कैलोरी सरप्लस कर दिया तो यू विल गेट फैट, मोटे हो जाओगे आप। ठीक है। सो कीपिंग इन योर माइंड यू हैव टू कैलकुलेट द TDEE। अभी खाने का जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो हम लोग डेली मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको। डेली मॉनिटरिंग में हम लोग एक एथलीट सुबह से रात तक क्या खाना खा रहा है उसका फोटो लेते हैं। क्या करना है? ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट, लंच, पोस्ट लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। अगर को मील को आपने डिवाइड किया 3 4 6 6 में, जो भी आपकी मर्जी है, कैलोरी एक ही रहेगा, जितना बारी डिवाइड कर लो। बस वो इंसुलिन स्पाइक जो है, अगर आप ज्यादा डिवाइड करते हो तो इंसुलिन स्पाइक हमेशा कंट्रोल में रहता है, सडन इंसुलिन स्पाइक नहीं रहता। इसीलिए हम लोग खाने को 6 मील में ब्रेक करते हैं, स्पेशली वेट लॉस में मिनिमम 6 मील में हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन इजी है, मैं सिंपल एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर आपका TDEE पकड़ लेता हूँ 2500 है, 2500 किलो कैलोरी, तो डिवाइडेड बाय 6, मतलब 6 मील में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हर एक मील में आपका कितना आना चाहिए? एनीवेयर बिटवीन 600 416 किलो कैलोरीज। 6 मील खा रहा है, हर मील में 416 जो है, 400। अराउंड 400 किलो कैलोरी হুম। हर मील में आना चाहिए। अभी हर मील का एक पोर्शन साइज है, उसमें मिनिमम
400 किलो कैलोरी का मिनिमम 40% और कैलोरीज प्रोटीन से आना है। जो एक बार आपने मिल को ब्रेक किया, वो मिल का 40% ऑफ द कैलोरी जो है वो आपके प्रोटीन से आना है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। खाने के पोर्शन का 40% मिनिमम प्रोटीन से आना है। नेक्स्ट 40% जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आना है। अगर एथलीट है, एंड्योरेंस एथलीट है, एंड्योरेंस मतलब उसको बहुत दूर तक दौड़ना है। अगर वेट लॉस करने जाओगे, यही इसी का फॉर्मूला होगा। 40% प्रोटीन आएगा, 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आएगा। 40% टोटल किलो कैलोरी का 40% प्रोटीन से, 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, और बाकी जो 20% बचा है वो 20% आएगा आपके गुड फैट से। जो भी गुड फैट आप खाओगे वो 20% आएगा। आपको ऑलरेडी पता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की जो किलो कैलोरीज है वो 4 किलो कैलोरीज है, और जो फैट के किलो कैलोरीज है वो 9 किलो कैलोरीज है पर ग्राम। मतलब फैट कम लेना है। दैट्स हाउ वी डिजाइन। नाउ वी कैलकुलेट द टोटल कैलकुलेशंस। जो कैलोरी का होता है वो वीकली होता है। मतलब हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर लिया कि भाई ये सुबह से रात तक इतना किलो कैलोरी खा रहा है। अभी उतना किलो कैलोरी 7 दिन का हम लोग लेते हैं, 7 डेज, और उसको टोटल जोड़ के 7 से डिवाइड करते हैं, तो वो आता है एवरेज कैलोरी कंजम्पशन 7 डेज का। किसको समझ में नहीं आया? हर दिन किसी का मेरे को खाने। सर। हाँ, मैं बताता हूँ। তুমি আজকে বিয়ে বাড়িতে গেলে, দমিয়ে খেয়েছো, আজকে তোমার ক্যালোরি ইনটেক হয়ে গেছে অ্যারাউন্ড 4000 কিলো ক্যালোরি। বুঝেছো? তোমার লিমিট দেওয়া ছিল তোর 2500 कैलोरी, তুমি 1500 किलो कैलोरी बेसी खेয়েছো। 1500 किलो कैलोरी आपने ज्यादा खाया है। अभी आपका वीकली कैलकुलेशन होगा। आपका अगर 2500 बोला गया था पर डे इंटू 7 इज इक्वल टू 17500 किलो कैलोरी एक हफ्ते में खाना था। अभी ये 17500 किलो कैलोरी आपको एडजस्ट करना है। ज्यादा आपने खा लिया है। अब ये टोटल 17500 किलो कैलोरी में ही आपको एक हफ्ते का खाना लाना है। तो मतलब आपको कोई कोई दिन जो है ज्यादा डेफिसिट करना पड़ेगा, या आपको रेगुलर फिर डेफिसिट में जाना है जहां पे 200 किलो कैलोरी करके कम होगा। प्लीज पुट योर माइक्रोफोन इन म्यूट। हाँ सर। म्यूट में डालो, बाहर क्या आवाज आ रहा है? এটা কে বুঝতে পারলো না আবার বলো, এটাকে বুঝতেই হবে। তোমার 7 দিনের ফিক্স করে দেবো আমি তোমাকে। ক্যালোরি ডেফিসিট দিয়েছি। তোমার অ্যাকচুয়ালি টিডিই ছিল আড়াই, ধর 3000, 2800 ছিল টিডিই। আমি বলছি ওয়েট লস করতে হবে, তোমাকে 2500 দিয়ে দিচ্ছি আমি টিডিই, মানে ক্যালোরি ইনটেক। প্রতিদিন যদি 2500 কিলো ক্যালোরি হয়, তাহলে 7 দিনে কত হবে? 17500 প্রতিদিন স্যার। কিলো ক্যালোরি। হ্যাঁ স্যার। একদিন তুমি বেশি খেয়ে নিয়েছো 200 ক্যালোরি, সরি 2000 ক্যালোরি। তাহলে ওই 2000 ক্যালোরিটা তোমাকে বাকি 6 দিনে মাইনাস করতে হবে, কম কম খেতে হবে। তো যখনই আমরা ক্যালোরি ক্যালকুলেশন করি, ক্যালোরি ইজ উইকলি ক্যালকুলেটেড, ইট ইজ নট ডেইলি ক্যালকুলেটেড অ্যাকচুয়ালি। বিকজ এভরিডে প্রতিদিনের খাবারের ক্যালোরি এক হতে পারে না, অসম্ভব। কোনোদিন 2200 হবে, কোনোদিন 2500 হবে, কোনোদিন 3000 হয়ে যাবে, কোনোদিন 2100 হবে। এটাকেই মনিটরিং করতে হবে এবং উইকলি ক্যালকুলেশন করতে হবে। বোঝা গেল? না বুঝলে ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে, আমি পাঠিয়ে দেবো, আবার বুঝবে। নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ গ্লাইকোজেন লোডিং।
already you know the carbohydrate is stored in muscle and your liver. তোমার যকৃতে এবং মাসেলের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেন হিসাবে স্টোর হয়। যখন তুমি কোনো হাই ইন্টেন্সিটি অ্যাক্টিভিটি বা ব্যায়াম করছো বা কোনো স্পোর্টস করছো, তখন বডি মাসেল থেকে আর লিভার থেকে কার্বোহাইড্রেটটা বা গ্লাইকোজেনটা নিয়ে নেয়। तो আমার যদি কোনো एंड्योरेंस एक्टिविटी থাকে, सपोज फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, या बैडमिंटन है, या कोई लॉन्ग रनिंग एक्टिविटी है, मैराथन वगैरह है, तो उसका 3-4 दिन से पहले इवेंट का हम लोग 7 से 10 ग्राम केजी बॉडी वेट में डेल कार्ब्स हम लोग उसको लोड करवाएंगे। कार्ब्स में क्या है? कार्ब्स में राइस है, दाल है, सत्तू है, आपको पता है कार्ब ही कार्ब है। तो 7 to 10 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्योर कार्बोहाइड्रेट इज लोडेड प्रायर 3-4 दिन पहले कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी है उससे लोडिंग कराते हैं एवरी डे। अभी इसका कैलकुलेशन देखो, अगर आपका बॉडी वेट अराउंड 65 kg है, तो आपको 7 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी में है, इंटू 7 कर लिया मैं, इज इक्वल टू 455 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 455 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3-4 दिन पहले से स्पोर्ट्स से लोडिंग कराएंगे। तो एक बार में तो नहीं खिलाएंगे, इसको 3-4 डिवीजन में हम लोग डाल देंगे। 3-4 डिवीजन में डाल के हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करवाते हैं। दिस इज नॉट कैलोरी सरप्लस, दिस इज टू increase the glycogen content in the muscle and liver. So when body requires, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगा, तो बॉडी अपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन लिवर एंड मसल से उसको मिलेगा। इसको कौन समझ में, किसको समझ में नहीं आया? স্যার একটু আরেকবার ব্যাপারটা বলুন। ওই সাবাস। ব্যাপারটা এটা, এটা কিন্তু অ্যাথলেটদের, হ্যাঁ, ওয়েট লস ওয়েট গেনের সাথে কোনো মতলব নেই এটা। যখন একটা অ্যাথলেট, সে ধরো ম্যারাথন রানার বা হাফ ম্যারাথন রানার, তার 4 দিন পরে গেমটা আছে, ধরো আজকে কত তারিখ, আজকে 22 তারিখ, ধরো ওর 25 তারিখে গেম আছে। গেমের ঠিক 3-4 দিন আগে, ধরো আজকে থেকেই আমি ওকে কার্বোহাইড্রেট খাওয়ানো শুরু করব। এটাকে কার্বোহাইড্রেট লোডিং বলে বা গ্লাইকোজেন লোডিং বলে। কেন? ম্যারাথন রানিং হলো একটা এন্ডিউরেন্স অ্যাক্টিভিটি, যেটা অনেকক্ষণ ধরে দৌড়াতে হয়। অনেকক্ষণ, প্রথম 1 ঘন্টার মধ্যেই বডি থেকে সব গ্লাইকোজেন শেষ হয়ে যাবে যদি লোডিং না করা হয়। আর যদি গ্লাইকোজেন শেষ হয়ে যায়, গ্লাইকোজেন ইজ দ্য ফুয়েল, ফুয়েল হিসাবে ইউজ হচ্ছে। গ্লাইকোজেন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে বডি মাসেলকে বার্ন করতে শুরু করে দেবে। তো এটাকে যদি অ্যাভয়েড করতে হয়, এন্ডিউরেন্সটা দরকার, ঠিক আমার পাওয়ার স্ট্যামিনা দরকার। খেলার 3-4 দিন আগে কার্বোহাইড্রেট তাকে লোড করাতে হয়, সেটা 7 থেকে 10 গ্রাম প্রতি কেজি অফ বডি ওয়েট। 2-3 বারে ইউ ক্যান ডিভাইড ইন 2-3 টাইমস অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান লোড ইট। লোড মানে খাওয়ারে ভাই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। লোডিং মানে ইঞ্জেকশন ফিঞ্জেকশন নেই, ओनली खावाते হবে कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स सिंपल सर कार्बोहाइड्रेट आप खिलाओ। ऐसे कैलकुलेशन में आया, मैं 65 kg का एक वेट का अगर एथलीट है, तो 455 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसको 3-4 दिन जो है एवरी डे उसको खिलाना है। सो ही विल हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। इसको मैं मैकेनिकल वे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से जाना है सिलीगुड़ी, कहाँ এটা जाना স্যার है? বডি বিল্ডিং এ যারা যখন খেলবে তখন ওই টেন্ডেন্সি। बॉडी बिल्डिंग का कुछ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बट दो इट इज सेम, बट ওটা প্রি স্পোর্টস লোডিং করে টু ভলিউমাইজ দ্য মাসেলের ভলিউম বাড়াবার জন্য। দ্যাট ইজ সেপারেট, বাট ইট ইজ এন্ডুরেন্স অ্যাক্টিভিটি। আচ্ছা। सर तो ये 40% ऑफ कैलोरी के अपार्ट होता है या विद इन दैट लिमिट ओनली? मतलब टीडी से ज्यादा चला जाता है, ये सरप्लस होता है।
ओ ओके। तो TDE वो से फोर्टी सरप्लस होता है। परसेंट हाँ, तो वो कार्ब जो 40% कैलोरी लेना है वो अलग है, दिस इज एडिशनल। हाँ, जो आपका मैंने बताया था वो नॉर्मल मेंटेनेंस है, जिसमें 40% कैलोरीज का अमाउंट प्रोटीन से आएगा, 40% कार्बोहाइड्रेट से आएगा, 20% गुड फैट से आएगा। ठीक है। एंड ये वाला जो है ये प्री स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स से पहले ग्लाइकोजन लोडिंग है। उससे मतलब नहीं है कोई, उससे जो भी खाना खा रहे हो नॉर्मल खाएगा, प्लस ये भी खाएगा। ओके ओके ओके। सर, सो और एट वन टाइम हाउ मच ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल एट वन सिंगल पॉइंट? it varies person to person. It cannot be defined, though there is some research papers where it says कि it's around 5 grams to 6 grams लिखा रहता है, but it varies person to person. Hmm? ओके It is ओके not, it is unsure, 100% not sure that মাসল can মাস be বেশি হলে proven. তো বেশি স্টোর হবে। হ্যাঁ, মাসেল আর লিভারে দুটোতেই স্টোর হয়, মাসেল লিভারে হ্যাঁ, বেশি একটা বডি বিল্ডার, নর্মাল মানুষের থেকে বডি বিল্ডারের বেশি স্টোর হবে। স্টোর হবে। আবার বডি বিল্ডিং এর দিকে ঝুঁকে যাস না তুই, খালি বডি বিল্ডিং বডি বিল্ডিং। ओके, anyhow, दिस इज ग्लाइकोजन लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको लॉन्ग ड्राइव में जाना है गाड़ी लेके, तो पहला काम आप क्या करोगे, ऐसे एक सुनसान जगह पे जाना है जहाँ पे रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप पहले क्या करोगे ना, अपना गाड़ी का टैंक फुल लोड करोगे, राइट, ताकि आप दूर तक जा पाओ, ड्राइव कर पाओ और फिर वापस आ पाओ। सेम आपको आपके बॉडी के जो फ्यूल है उसको भी आपको लॉन्ग टर्म में आपको लोड करना है, ताकि बराबर वो जा पाए, बॉडी खेल पाए वो गेम। क्योंकि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आप जब मैराथन रनिंग कर रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, उस टाइम पे ना ग्लूकोज जो है नहीं पीते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में आपने किसी स्पोर्ट्स में नहीं देखा होगा कि जो इंटरनेशनल एंड नेशनल प्लेयर्स है वो ग्लूकोज पी रहे हैं। एक भी फोटो वीडियो कुछ भी दिखा दो मुझे, या विराट कोहली लेके ग्लूकोज पी रहा है, एक भी नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स अगर आप ग्लाइकोजन लेते हो, अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हो, तो आपका मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग नहीं होता है, प्री होता है या पोस्ट होता है, इंट्रा नहीं होता है कभी। कहीं पे भी मुझे तुमको मिले, बचपन में तुमने बहुत खेला होगा, मम्मी ने ग्लूकोज दे दिया होगा, या वहां पे मार्केटिंग किया होगा कि सूरज हम लोग का खून चूस ले रहा है, इसके लिए ग्लूकोज पिलाओ ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। ये तो ऐसा जो है वो गलत एडवर्टाइजमेंट है, गलत मार्केटिंग है। यू शुड नॉट टेक एनी ग्लूकोज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। और दो, जो ग्लैटोरेड है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसमें बहुत ही मिनिमल डेक्सट्रोज होता है, बहुत मिनिमल अमाउंट के, जो डायरेक्टली आपका इफेक्ट नहीं करता है। डेक्सट्रोज है वो, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं। ओके, सो इट बेनिफिट्स दैट इट एनहेंस योर एंड्योरेंस एंड डिले योर fatigue. दिस इज ग्लाइकोजन लोडिंग। प्री स्पोर्ट्स मील, अगर कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसका मील कैसा होगा। वेट लॉस वेट गेन का तो हम लोग पता है, हम लोग को वेट कैलोरी डेफिसिट करना है भाई वेट लॉस में। 90% बिजनेस लाइज इन वेट लॉस मार्केट राइट नाउ। सो कैलोरी डिफिसिट, कैलोरी डिफिसिट, कैलोरी डिफिसिट, वेट लॉस अगर आपको करना है, फॉर दैट यू नीड टू नो गुड फूड एंड बैड फूड। अच्छा खाना कौन सा है, खराब खाना कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, पहले भी मैं बोल चुका हूं, प्रोसेस फूड निकाल दो, नेचुरल फूड घुसाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाओ वो भी पोर्शन में। स्वीट फ्रूट्स जो है उसको ज्यादा मत दे देना, थोड़ा इंक्लूड करो बट स्वीट ज्यादा मत देना। फ्रुक्टोज भी जो है वो बहुत कैलोरीज होता है फ्रुक्टोज में। गिव फिलर्स, फिलर्स लाइक जिसमें कैलोरी कंटेंट कम है, जैसे कुकुम्बर, पपाया, ये सब में कैलोरी कंटेंट कम है। वाटरमेलन, कंसेंट्रेशन ऑफ कैलोरी कम है, आकार उसका ज्यादा है।
दो इट इज हैविंग फ्रुक्टोज बट कंसेंट्रेशन ऑफ द कैलोरीज कम है। वो कंसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लेना, मैंने बताया होगा। एक लड्डू और आधा किलो चावल, अभी दोनों का कैलोरी सेम है। इसका भी 500 कैलोरी है, इसका भी 500 कैलोरी है, बट इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये पेट को नहीं फुलाता है, ये आपका हंगर को नहीं दबाता है, ये धीरे धीरे रिलीज नहीं होता है। बट चावल जो है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, धीरे धीरे रिलीज होगा, पेट भर जाएगा, इसमें न्यूट्रिशन है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन लड्डू, टेक राइस, बेटर। सो जिसमें जितना टाइटली एडेड कैलोरीज है उसको हम लोग कंसेंट्रेटेड कैलोरीज बोलते हैं, वो कम करना है। वेट लॉस में वो करना ही, लेना ही नहीं है। जैसे चॉकलेट्स, स्वीट्स, लड्डूज वगैरह, पेस्ट्रीज, उसमें थोड़े जगह में बहुत कैलोरी रहता है। इट इज मेंट फॉर सुनीता विलियम्स। जो लोग स्पेस में रहते हैं, स्पेस में जगह कम है, खाने को छोटे जगह में रखना है, छोटे जगह में ज्यादा कैलोरी न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब के लिए है, नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं है। आपको ये सब बंद कराओ, कैलोरी डिफिसिट ऐसे कराना है, और एक्टिविटी लेवल को थोड़ा बढ़ा दो। आस्ते 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 धीरे धीरे वेट लॉस होगा, 100% श्योर है। कोई नहीं, फुल ट्रांसफॉर्म करना है बॉडी, मसल वसल बढ़ाना है, पैक्स लाना है, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करवाओ और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। 1 स्कूप से ज्यादा हुए प्रोटीन नहीं, नेचुरल प्रोटीन ज्यादा देने স্যার, हैं। মেয়েদের জন্য যদি টোন ফিগারের জন্য তাহলে কি করা যেতে পারে? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ के टोन के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। यू कैन गिव कोलाजन सप्लीमेंट, यू कैन गिव बायोटिन, कोलाजन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रात में सोने से पहले 1 स्कूप व्हे प्रोटीन, और दिन भर में कैलोरी डेफिसिट, और बेस्ट उपाय टोनिंग के लिए, इससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। अगर थायराइड है तो डॉक्टर को दिखाना है, हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को एड्रेस करना है, उसके लिए मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स लेना है। लड़कियों के लिए बता रहा हूँ। ओके, एनी हाउ, कमिंग बैक टू प्री स्पोर्ट्स मील। खेलने से पहले क्या खाएगा? 2-3 घंटा पहले कार्बोहाइड्रेट देना है, 1 to 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर उसका 60 kg वेट है तो 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 घंटा 3 घंटा पहले खेलने से। ये मॉडरेट स्पोर्ट्स है, लंबा नहीं जो 5-6 घंटा चलता है, ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है। छोटा स्पोर्ट्स, आधा घंटा 1 घंटे में खत्म हो जाता है ऐसा स्पोर्ट्स। 1 मिनट। सॉरी, एक फोन आ गया था। ओके, एनी हाउ, सो आपको खाना जो है, कार्ब जो है 1 to 4 ग्राम केजी बॉडी वेट, थोड़ा बहुत प्रोटीन, लो फैट एंड लो फाइबर देना है। अगर स्पोर्ट्स से पहले आप हाई फैट एंड हाई फाइबर खाना दे देते हो तो हाई फैट से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हाई फाइबर खाना देते हो तो उसका डाइजेशन जो है इरिटेबल हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा, पॉटी लगने लगेगा ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, पेट खराब हो सकता है। सो स्पोर्ट्स से पहले ये ध्यान पे रखो, 1 से 4 ग्राम, 2-3 घंटा पहले 1 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट देना है। मॉडरेट प्रोटीन दो, लो फैट एंड लो फाइबर देना। हाई फाइबर हाई फैट खाना नहीं देते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा, इंडाइजेशन, ओवर डाइजेशन हो जाएगा, और उसके वजह से पेट खराब हो सकता है। सो नेवर गिव हाई फाइबर फूड
हाई फैट फूड बिफोर स्पोर्ट्स। एक नॉर्मल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ कि थोड़ा बहुत ओट्स, जैसे 20 to 30 ग्राम ओट्स। ओट्स कभी 30 ग्राम से ज्यादा देना नहीं किसी को। बनाना, लिटिल बिट ऑफ व्हे, और राइस, चिकन, वेजिटेबल्स। नॉर्मल राइस, चिकन, वेजिटेबल करी, लाइट, नो मसाला या लेस स्पाइसेस, लेस ऑयल। ये जो है सिंपल आइडियल खाना है स्पोर्ट्समैन के लिए। सिंपल आइडियल। ठीक है। अगर वो राइस वो अगर नहीं खाता है तो ओट्स बनाना वो दे दो, अगर राइस नहीं खाता है तो। अगर राइस खाता है तो राइस, चिकन, वेजिटेबल दे दो। यहाँ पे जो राइस यूज करते हैं ये हम लोग ब्राउन राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल राइस। ये प्री स्पोर्ट्स मील है। इंट्रा स्पोर्ट्स मील, जब वो खेलेगा तो हम लोग क्या दे सकते हैं। खेलेगा उस टाइम पे, अगर नॉर्मल छोटा ये है, स्पोर्ट्स है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, ब्रांच चेन एमिनो एसिड दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं हाइड्रेशन मेंटेन के लिए। कार्बोहाइड्रेट के जगह पे हम लोग डेक्सट्रोज देंगे। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं खिलाते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं। ग्लूकोज यूज नहीं करते हैं, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं देना। और पानी सिप एवरी 15 to 20 मिनट्स। 1 घंटा में आपका गेम है खत्म, 15-20 मिनट आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना। अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हो तो आपके बॉडी में जो आपका कैल्शियम है और जो सोडियम है, स्पेशली सोडियम, वो डाइल्यूट हो जाएगा, घुले जावे। एंड सोडियम इज मस्ट फॉर योर मसल कंट्रैक्शन। ज्यादा पानी पीना स्पोर्ट्स में मना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। ज्यादा पानी पीने से आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो घुल जाएगा, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा सडनली, और वॉमिटिंग भी हो सकता है। सो थोड़ा थोड़ा करके पानी, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्रांचियन एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, और कुछ हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है। दिस इज इंट्रा एंड पोस्ट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खत्म हो गया, खेल कूद इमीडिएट खत्म होने के बाद हम लोग नहीं देते हैं। उसका एक कारण है कि जब आप, आपका बॉडी एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, yes. आई कैन नॉट सी एनीबडी, लाइक आई एम टॉकिंग टू घोस्ट। Everybody is busy with their activity. Okay, just listen. So पोस्ट गेम इमिडिएटली हम लोग खाना नहीं देते हैं, बिकॉज उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, इट रशेस टुवर्ड्स द मसल। सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन मसल्स में है। डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉर्मलाइज होने के लिए, मतलब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के आसपास के ब्लड सप्लाई बढ़ने के लिए मिनिमम 20 to 30 मिनट्स टाइम लगता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम एक्टिवेट नहीं है तो हम लोग खाना नहीं खिलाएंगे। इसीलिए पोस्ट जो स्पोर्ट्स है, इमीडिएट खाना मत दे देना किसी को। पानी पिलाओ, थोड़ा सा रेस्ट लेगा, थोड़ा सा 15-20 मिनट, 30 मिनट वेट करो। देन यू गिव प्रोटीन 20 to 30 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 30 to 50 ग्राम्स। पानी दो। आप क्या दे सकते हो, जैसे सिंपल हुए बनाना दे सकते हो आप, चिकन सैंडविच, जूस, नॉर्मल खाना, ये पोस्ट एक्सरसाइजेस दे सकते हो। क्लीन मील ही देते हैं हम लोग ज्यादातर। ठीक है। इसका परिमाण जो है बहुत नहीं होता है, पोर्शन कंट्रोल्ड होता है। ज्यादा देने से डाइजेस्टिव सिस्टम को सडनली सरप्राइज मिलेगा, तो इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, कभी कभी कोई खेत में हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लूकोज का मात्रा बहुत बढ़ जाता है सडनली। उससे आपका किडनी या लिवर डैमेज हो सकता है। तो ऐसे कोई खेल कूद के आया, उसको 50-20 रसगुल्ला मत खिला देना, मर जाएगा आदमी। जीत गया खेल के तो उसको खिला दो। दिस थिंग्स आर बैड। जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो लोग को पता है ऑलरेडी कि उसका गेम खत्म हो गया, यू हैव टू स्टॉप, टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, एंड देन यू टेक फूड लाइक 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, अप टू 30 to 50 ग्राम्स। पानी पीना है। आप वही प्रोटीन वन स्किप, उसके साथ एक बनाना ले सकते हो। आप एक चिकन सैंडविच खा लिया, थोड़ा सा जूस। जूस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड वाला जूस नहीं, जो जूस आपके सामने बना के देगा वो जूस। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्पोर्ट्स, पोस्ट स्पोर्ट्स मील।
नाउ हियर कम्स द मेंटेनेंस मील। मेंटेनेंस मील क्या है? जब वो ऑफ सीजन है, उसका उसका भी कोई स्पोर्ट्स नहीं है, गेम नहीं है, दिसंबर में है, अभी नहीं है। सो नॉर्मल जो हम लोग का बैलेंस इंटेक्ट है ना, जो मैंने पहले बताया था, कैलोरी टीडीई को मेंटेन करने के लिए वो ही नॉर्मल देना है 40%। आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट 40 to 50% दो, बाकी प्रोटीन अप टू 30% दो, और फैट 20 to 25% मैक्सिमम। ये उसका मेंटेनेंस फेज है। इसमें भी आप 40-40-20 रूल यूज कर सकते हो। 40% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन, 20% फैट। ये 40-40 रूल आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज। प्रोटीन में फोकस करो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो और हेल्दी फैट दो। दैट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द मेंटेनेंस मील। ओके, अभी तो नेचुरल फूड का हो गया, तो मैं प्री स्पोर्ट्स कुछ सप्लीमेंटेशन के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर कोई इंडोर गेम है, आउटडोर गेम नहीं, सूरज के नीचे वाला कोई भी गेम नहीं, अगर इंडोर गेम है तो यू कैन गिव कैफीन 3 to 6 milligrams पर केजी। अगर आउटडोर गेम है तो यू कैन ऐड क्रिएटिन, डोंट ऐड कैफीन। क्रिएटिन आप दे सकते हो 3 से 5 ग्राम विथ सफिशियंट हाइड्रेशन। आप बीटा एलानाइन दे सकते हो 2 to 5 ग्राम, इंडोर आउटडोर गेम बोथ में। सिट्रुलिन मैलेट दे सकते हो 6 से 8 ग्राम, इंडोर आउटडोर दोनों में। इलेक्ट्रोलाइट्स उसके साथ में आप मिला के दे सकते हो। सो इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस, इट विल एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। बट हमेशा याद रखना, अगर आउटडोर ह्यूमिड हाई टेम्परेचर में एंड्योरेंस एक्टिविटी है तो उसमें कैफीन नहीं देना है। बाकी आप क्रिएटिन दे सकते हो, बीटा एलानाइन दे सकते हो, सिट्रिलिन मैलेट दे सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हो। कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे रेड बुल, एनर्जाइजर, मॉन्स्टर, ये जो है आउटडोर गेम के लिए नहीं है। इसमें 90 मिलीग्राम तक कैफीन रहता है, विच इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी इफ यू प्ले इन अ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। यू विल डिहाइड्रेट और उसकी वजह से आपका डेथ भी हो सकता है। तो इट इज नॉट अलाउड। इंट्रा जब आप खेल रहे हो तब क्या सप्लीमेंट? ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप बॉडी को ये ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड दे सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, टू अरेस्ट द मसल डिग्रेडेशन ड्यूरिंग योर गेम के टाइम पे। इतना ही स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। और स्पोर्ट्स के बाद आप वे प्रोटीन दे सकते हो, डेक्सट्रोज 30 to 50 ग्राम, क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम, एल ग्लूटामाइन टू रिकवर, ओमेगा 3 दे सकते हो जिसमें ईपी एंड डीएचए है 1 to 3 ग्राम। ये नॉर्मल सिंपल कम खर्चे में बेस्ट पोस्ट स्पोर्ट्स सप्लीमेंटेशन है। पर इसमें एडवाइज्ड है कि अगर आप एल ग्लूटामाइन देते हो 5 से 10 ग्राम, वो रात को सोने से पहले दो। ठीक है। ओके, सप्लीमेंटरी सेफ्टी टिप्स। इंडिया के बाहर आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे कोचेस है कि उसके स्टूडेंट्स को क्या खिला रहा है, क्या सप्लीमेंट दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, दैट इज अननोन। बट सडनली स्पोर्ट्स खेलते वक्त उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो कभी भी ओवरडोज नहीं करना है कोई भी खाना एंड सप्लीमेंट्स का। And to know that, I would request everybody to download this KYM app, Know Your Medicine। अभी करो, ओपन योर प्ले स्टोर, एंड जिनका एप्पल है तो आईफोन स्टोर, एंड सर्च KYM, नो योर मेडिसिन। बहुत सारे KYM आ सकता है, बट KYM के बाद लिखा रहेगा नो योर मेडिसिन। इट इज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, which is working under WADA, World Anti-Doping Agency. So everybody please install KYM app in your mobile। अगर इंस्टॉल हो गया तो मुझे यस बोलो। তার এখানে তো দেখাচ্ছেই না। দেখাবে বাবু। কে কে ওয়াই ওয়াই এম এম তাই তো? KYM, হ্যাঁ, এখানে KYM তো বলে সার্চ নেই। করো খালি প্লে স্টোরে। অ্যাপ স্টোরে নেই, অ্যাপ স্টোরে কি দিয়ে সার্চ করি? কোন অ্যাপ স্টোর?
কোন অ্যাপস? আইফোনের অ্যাপস? আইফোনে নেই তাহলে আনফরচুনেট। যাদের অ্যান্ড্রয়েড আছে তাহলে কি পেয়ে গেছো, করবো? তাহলে গভর্নমেন্ট লঞ্চ ইভেন করবে কেওআইএম আছে, নো নো ইওর মুভি আছে। না না, নো ইওর মেডিসিন। হ্যাঁ, বাকি সবাই পেয়ে গেছো? হৃদেন্দ্র? স্যার দুটো পাতার ছবি দেওয়া আছে, ওটা হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় দুটো ডোজ পাতা আছে রোধী দেখছি। এজেন্সি। রাইট, অশ্বত্থ পাতা। অসত্য পাতা। তাহলে স্যার আমরা কি করবো? আইফোন মানে সরকার ভেবেই নিয়েছে যে তোমরা মানে অনেক বড় লোক, তোমাদের দরকার নেই। তো ইউ ক্যান গো টু নাডা ওয়েবসাইট, ইউ ক্যান সার্চ নাডা। নাডা কোথায়? ওয়েবসাইটে ডাইরেক্ট গিয়ে লেফটে ওপরে একটা পিডিএফ ফাইল আছে যেটাতে লেখা আছে লিস্ট অফ ব্যান্ড সাবস্টেন্স। ওই পিডিএফ ফাইলটাকে ডাউনলোড করবে, বাট অ্যাপ থাকলে খুব সুবিধা হতো। এবার যাদের যাদের ইনস্টল হয়ে গেছে একটু আমাকে বলো কেওয়াইএম অ্যাপ। अनिरुद्ध हो गया? Yes, sir, done. Okay, now open your KYM app. You may log in, may not log in, doesn't matter. And you can just search the name of the medicine, any medicine, और देखो कि वो इट इज बैंड और नॉट बैंड। ऐसे करके यू कैन चेक कि अगर आपके कोच कोई भी मेडिसिन आपको दे रहा है, उसका नाम आपको पता है, तो वो वाडा एंड नाडा में स्पोर्ट्स में बैंड है क्या। अगर कोई मेडिसिन वाडा और नाडा में बैंड है और उसको आपको लेना जरूरी है, तो आप एथलीट नहीं है। सो एथलीट अगर मैं कहता हूं खुद को, तो आई कैन नॉट टेक एनी सब्सटेंस which is banned by नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अगर कोई गेम है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स है जिसमें आपको ये बैंड सब्सटेंस यूज करना पड़े, सो दैट इज नॉट ए स्पोर्ट्स। यू कैन ऑल्सो सर्च, आप एक सर्च कर सकते हो, दैट इज स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया, उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना कभी जरूरत होगा तो। वो डाउनलोड करके उसमें स्पोर्ट्समैन का डेफिनेशन देख लेना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन? व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ए स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन? Where you will see if you are using banned substance, you cannot be an athlete, you cannot be a sportsman. And if you that particular sports is using banned substance, that cannot be considered as a sports in India. मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, इशारा नहीं कर रहा हूँ। समझदार तुम लोग हो, खुद समझदार हो। So the main thing is balance calories, balance macros, balance your timing, supplement strategically, use consistent. C is the long-term key for weight loss, weight gain, for athletic performance. Consistent, consistent, consistent. Only consistency can give you result. 2 दिन 3 दिन 4 दिन का यूज का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। Okay, so first part of your remaining thing is done. I hope that you have got lots of information today. This recording will be uploaded in your application. So people who missed the class, they can, see and understand. Thank you very much. Take care. Bye bye. Enjoy your Saturday and also স্যার, browse your Know Your Medicine software. Yeah. স্যার, Hmm. Thank you, sir. বোনসের জন্য কোনো ভালো ট্যাবলেট কোনো সাজেস্ট করতে পারেন? বোনসের জন্য প্রতিদিন 10 মিনিট সানরাইজের এক্সপোজারে যাবে সকালবেলা, যখন সূর্য মানে মোটামুটি উঠে গেছে 10 মিনিট বাইরে থাকবে। ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার যেগুলো আছে সেটা খেতে পারো, আর এরপরে সাপ্লিমেন্টস তো প্রচুর রয়েছে। আপরাইস D3 খেতে পারো। আপরাইস 6000 K সপ্তাহে একটা ফর কামিং 1 মান্থ করে, আবার ক্যালসিয়ামটা টেস্ট করে নিতে পারো, সিরাম ক্যালসিয়াম বলে।
ব্লাডে যে ক্যালসিয়ামটা থাকে। অ্যান্ড যদি ভিটামিন D3 ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে ভিটামিন ডি প্রোফাইল করতে হবে আগে, তারপরে ভিটামিন ডি তোমার ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে যদি খুব কম থাকে তো। বাট বিফোর উই গো, ইউ হ্যাভ টু চেক ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভিটামিন D3 ইন ইউর ব্লাড। যদি না চেক করে আমরা দিয়ে দিই তাহলে দের ইজ এ টার্ম কল হাইপার ভিটামিনোসিস, মানে অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন নিলে ইট ইজ টক্সিক, এটা পয়জন, যেটা লিভারের কিডনিকে খারাপ করে দেবে। তো অতএব অযথা নেওয়া নয়, যদি দরকার হয় তাহলেই নেবে, কেন আমি তো বাড়ি থেকে বুঝতে পারছি না যে আমার ভিটামিন D অভাব কিনা। সো ইট ইজ বেটার টু গো ফর আ ব্লাড টেস্ট, ভিটামিন D3 বা ভিটামিন ডি প্রোফাইল অ্যান্ড সিরাম ক্যালসিয়াম টেস্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, টেক কেয়ার, আচ্ছা। বাই বাই।